A very good morning, evening, and afternoon to all my dear students. I hope you are happy, healthy, and preparing well for your examinations. Today we are taking your fourth poem, A Roadside Stand. Just keep a notebook to note down some important words, phrases, and poetic devices. First of all, glossary. Out with. In this poem, there are so many phrases and sentences. You should know the meaning of those phrases and sentences. Out with means extended. Sped means here passed in great haste and speed. Roadside stand. Roadside stand is a little shed that sells cheap essentials फॉर द पासर बाई. रोड के साइड में एक शेड बनी होती है जहाँ छोटी मोटी चीज़ें वो लोग बेचते हैं. डोल मीन्स पीस सिटी मनी, बिग अमाउंट ऑफ मनी, इट इज़ कॉल्ड डोल. फील इन हैंड. द पुअर पीपल डू नॉट वॉन्ट प्रोमिस. फील इन हैंड फ्रेज का मतलब इस पोएम में है द पुअर पीपल डू नॉट वॉन्ट प्रोमिस, दे वॉन्ट द प्रोमिस टू बी फुलफिल्ड. Feel money in hand is different from having money between the giver and the taker. Expand, improve. Crossly. Crossly word दो तीन बार आया इस पोएम में. And crossly का मतलब है angrily. Angrily the poet is saying some sentences. They had none. They had none means here they had no gas to sell. Didn't it see? Haven't you seen? Requisite lift of spirit. What does this phrase mean? The most important thing to make one feel confident and safe. The voice of the country. The voice of the country means here cry of the poor villagers. I can't help owning the great relief it would be. This sentence is important here and it means I keep on feeling an unreal relief of the villagers. At one stroke means instantly. Turant. As I come back into the scene, as I come back to my senses, as I come back to the reality. My pain here refers to, my pain is the suffering plight of the poor people. Put me out of my pain. The poet is telling in this poem that put me out of my pain. तो इसका मतलब है I hope you, the rich, promise to open your hands for these poor people. Now come to the central idea of the poem. A roadside stand highlights the stark reality of class difference. जो मेन इसका सेंट्रल आइडिया है वो है क्लास डिफरेंस को शो किया है पोइट ने इसमें बिटवीन द सिटी रिच एंड द रूरल पुअर एंड कॉल्स फॉर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर द लेटर. The roadside stand owner representing the rural poor complains of the indifferent attitude of the city folk as represented by the city motorist. मोटरिस्ट उन लोगों को कहा है जो अपने व्हीकल्स में अपनी कार्स में सिटी से और रूरल एरिया की तरफ आते हैं जाते हैं और वो कभी भी स्टॉप नहीं होते रोड साइड स्टैंड को देखकर. एंड अपील्स टू देम टू कम फॉरवर्ड टू रिलीव द रूरल पुअर ऑफ देयर वांट एंड पॉवर्टी. वांट मीन्स यहाँ होता है विश. मैसेज क्या है पोएम का? देयर इज़ अ यूनिवर्सल अपील टू द रिच एंड द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर रूरल फॉक. गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं और रिच पीपल से भी अपील कर रहे हैं पोएट कि वो पुअर विलेजर्स को अपलिफ्ट किया जाए, उन्हें भी थोड़ा रेज किया जाए. द पुअर रूरल फॉक कैन मेक प्रोग्रेस ओनली व्हेन द रिच डू नॉट एक्सप्लॉइट देम. द गवर्नमेंट एंड द बिग मनी मैग्नेट्स should take the responsibility to improve the condition of the poor instead of promises. Grassroot action. Promises के बजाय action should be taken the right direction for their betterment. Let their hopes not shatter in this materialistic world. कि ये world materialistic है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा earn करना चाहता है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा possess करना चाहता है. ऐसे में वो rural people हैं उन्हें भी थोड़ा upliftment मिलना चाहिए. So the poet is trying to convey this message. मेन पॉइंट्स बहुत इजी वर्ड्स में है, आप मेन पॉइंट्स एक बार पढ़ लेंगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा. देखिए, सम पुअर फार्मर्स पुट अप रोड साइड स्टैंड सो दैट दे कैन अर्न सम मनी फ्रॉम द रिच सिटी पीपल गोइंग दैट वे इन देयर मैग्निफिशेंट कार्स. द पुअर ओनर ऑफ द स्टैंड कीप्स सिटिंग बाय द ओपन विंडो ऑल डे लॉन्ग. आउट ऑफ द थाउजेंड्स कार दैट पास दैट वे he keeps waiting for one at least to stop there and buy a new of the things he has for sale.
but hardly any car stops there. If ever someone looks aside a moment, he feels irritated. जब भी कोई लोग अगर गलती से रुक भी जाए तो वो बहुत इरिटेटेड फील करते हैं. क्यों करते हैं? इट इरिटेट्स हिम टू सी हाउ बैडली द स्टैंड शेड हैज़ बीन पेंटेड, क्योंकि उसके पेंट को देख के बड़ा इरिटेट हो जाते हैं वो. ही फील्स दैट द आर्टलेस पेंट हैज़ स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप. The rich man in the car has money in his pocket, but he thinks it below his dignity to stop at such a place. It means कि city people have money, but they don't like to spend this money at such a small place. The poor man at the stand is filled with sorrow to see that the car has not stopped there. The poet thinks of the foxy politicians, means clever politicians, who fooled the poor with big promises but never do anything real for them. While pretending to be worried about the welfare of the poor, they merely fill their own coffers. Coffers यानी तिजोरियाँ. उन्हें प्रॉमिस करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फिर उनसे बेनिफिट लेते हैं खुद और अपनी तिजोरियाँ भरते हैं. टू फिल देयर ओन कॉफर्स. Thinking of the poor owner of the roadside stand, the poet feels pained. पोइट को बहुत पेनफुल फीलिंग होती है उन रोड साइड स्टैंड वालों को देखकर. ही फील्स पेन्ड टू थिंक हाउ द पुअर मैन कीप्स सिटिंग ऑल डे एट हिज ओपन विंडो एंड वेटिंग फॉर सम कार टू स्टॉप देयर. इफ एवर एनी कार स्टॉप्स देयर, इट इज़ नॉट टू बाय एनीथिंग. It stops there either to turn back or to ask the way or to ask if it can have a gallon of petrol from there. अगर वहाँ कोई कार रुकती भी है तो वो सिर्फ पेट्रोल के लिए रुकती है. पेट्रोल चाहते हैं वो, जो कि वो लोग नहीं दे सकते, रोड साइड स्टैंड वालों के पास होता ही नहीं है. द पोइट वॉन्ट्स दैट दीज पुअर पीपल शुड बी टेकन आउट ऑफ देयर पेन एंड पॉवर्टी एट वन स्ट्रोक, कि इमीडिएटली इन लोगों को अपने पेन से बाहर निकाल देना चाहिए. ही सेज दैट इट वुड बी अ ग्रेट रिलीफ टू हिम इफ़ इट हैपन्स. सो अगर ऐसा होता है तो पोइट को बहुत अच्छा लगेगा. नाउ कम टू पोइटिक डिवाइसेस. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर किस में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है? अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कि रोड साइड स्टैंड इज़ प्लीडिंग, रिक्वेस्ट कर रहा है रोड साइड स्टैंड, तो रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाई कर दिया इस लाइन में. जस्ट नोट डाउन द पोइटिक डिवाइसेस एंड फ्रेजेस. एजोनेंस किस में यूज़ हुआ है? बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स. ओ साउंड का रिपीटेशन यहाँ आप देख रहे हो. ओ साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो एजोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स. आई द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यहाँ पे आई ई साउंड रिपीट हो रहा है. देन एलिट्रेशन. एलिट्रेशन किस में है? देखो, एलिट्रेशन पैथेटिकली प्लेड, स्टार्टिंग सेम साउंड से हो रहा है दो वर्ड्स का, तो एलिट्रेशन. ट्रांसफर्ड एपिथेट. देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? किसी एक ट्रांसफर्ड एपिथेट पॉलिश्ड ट्रैफिक में यूज़ हुआ है. अब इसमें एक वर्ड तो नाउन होता है, पॉलिश्ड ट्रैफिक नाउन है, पॉलिश्ड एडजेक्टिव है ना. पॉलिश्ड ट्रैफिक के लिए यूज़ नहीं है. पॉलिश्ड तो कार होती हैं, तो किसी एक नाउन का एडजेक्टिव किसी दूसरे नाउन को दे दिया जाता है, तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है, यानी ट्रांसफ़र हो गया उस एडजेक्टिव का. तो ट्रैफिक कभी भी पॉलिश्ड नहीं होता, पॉलिश्ड कार होती हैं, कार्स होती हैं. तो द पोइट हैज़ यूज्ड पॉलिश्ड ट्रैफिक टू रेफर टू द रिच सिटी ड्वेलर्स. पॉलिश्ड ट्रैफिक में ट्रांसफर्ड एपिथेट है. रिपीटिशन. द वर्ड रॉन्ग हैज़ बीन रिपीटेड. एनाफोरा. एनाफोरा जब किसी भी पोएम की दो तीन लाइंस किसी सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. नेक्स्ट, इसमें एनाफोरा और क्रुक नेक्ड, गोल्डन स्क्वैश और ब्यूटी रेस्ट, और से स्टार्ट होती है दोनों. रेपिटेशन यहाँ भी है. मनी, सिटी हैव बीन रिपीटेड. एजोनेंस अगेन, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस. यहाँ भी ई साउंड का आई लेटर आप देख रहे हैं, ई साउंड का रेपिटेशन है. एलिट्रेशन इज ऑल्सो देयर अगेन. ग्रीडी गुड, ग साउंड. बेनिफिशियल बीस्ट, ब साउंड. बी बॉट, यहाँ भी ये सारी फ्रेजेस आप नोट डाउन कर लीजिए. इस पोएम में बहुत सारी फ्रेजेस में पोएटिक डिवाइसेस हैं. ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन होता है दो वर्ड्स या दो वर्ड्स फ्रेजेस अगर अपोजिट आइडिया को शो करते हैं, तो दैट इज ऑक्सीमोरन. देयर इज यूज ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट
मीनिंग्स टुगेदर. ग्रीडी, गुड डूअर्स. कि जो गुड डूअर्स यानी अच्छा करने वाला इंसान है वो ग्रीडी कैसे हो सकता है? तो ग्रीडी और गुड डूअर्स ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट अपोजिट आइडिया को शो कर रहे हैं. Repetition, the word sleep has been repeated. Transferred epithet again. Transfer epithet polished traffic में भी यूज़ हुआ है और यहाँ पर transfer epithet selfish cars में यूज़ हुआ है. Selfish cars, कार नाउन है, selfish adjective है और selfish कार नहीं होती है, selfish लोग होते हैं. तो सिटी पीपल के लिए यूज़ हुआ है कि वो लोग सेल्फिश हैं लेकिन इन्हें बोला क्या गया है? सेल्फिश कार्स. तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है. सेल्फिश कार्स और पॉलिश्ड ट्रैफिक, इन दो फ्रेजेस में यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है. पर्सोनिफिकेशन, अगेन द पोएट हैज पर्सोनिफाइज सैडनेस. कि सैडनेस खिड़की से बाहर देख रही है. सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर. कि खिड़की के पास छुपी हुई है, छुप कर देख रही है सैडनेस. तो सैडनेस का पर्सोनिफिकेशन हो गया. रेपिटिशन, कार, कार वर्ड हैज बीन रिपीटेड हियर. Next, alliteration again. Alliteration, the repetition of the letter G in gallon of gas. Personification, the voice of the country. Voice of the country में personification है. Repetition, country and pain. So these are poetic devices. I hope you have noted down all these words and phrases. Now come to some important questions. What should the government do for the rural poor? The government should give food, clothes and shelter to the rural poor. Facilities of health, education and opportunities, employment are very necessary for their upliftment. What do you mean by polished traffic? ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हुआ है. पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब सिटी पीपल के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है. पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफर्स टू द रिच सिटी ड्वेलर्स. ड्वेलर्स यानी residents traveling in big luxurious cars. They appear to be polished outside but their minds do not understand the sufferings of the poor people. यानी बाहर से तो बड़े polished लगते हैं वो लेकिन अंदर से poor people की feelings को वो नहीं समझ पा रहे हैं, है ना. तो इसीलिए उन्हें कहा गया है polished traffic. Explain passed with a mind ahead. The city people who passed by the roadside stand were self-centered. सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं होता. एंड देयर माइंड्स वर रेस्टलेस विद ग्रीड फॉर मनी एंड एम्बिशंस. यानी उन्हें अपने से ही मतलब होता है, सेल्फिश होते हैं, उन्हें बस खुद की ग्रीड ऑफ मनी है, एम्बिशंस हैं खुद के, फॉर ग्रेट प्रॉफिट्स इन देयर बिजनेस. एंड दे हैव दे आर नथिंग टू डू विद दोज पुअर पीपल. What is the childish longing that the poet refers to? Why is it in vain? Childish longing किसे बोला है और वो बेकार क्यों गई है? The poet refers to intense and futile desires of owners of roadside stand to sell goods to the passers-by. It is vain because not many people stop buy things from them. What is the party in power? पार्टी इन पावर का क्या मतलब है? कीपिंग अवे फ्रॉम दीज रूरल पुअर. द पार्टी इन पावर इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स द पैथेटिक कंडीशंस ऑफ दीज रूरल folk. It is depriving these villagers of a luxurious, comfortable lifestyle. What does the life of the moving pictures imply? Moving pictures का मतलब क्या है इस पोएम में? The life of moving pictures implies the glamorous lifestyle of the rich people, full of luxuries and comforts, unlike the life of the poor village folk who are leading a miserable life, struggling hard for their existence. What are the usual complaints made by the city men when they stop at the roadside stand? The rich people to and from the cities usually have the same sets of complaints. Having failed to see the wretchedness of the poor, they complain that the roadside stand, with the tasteless way in which it is painted, ruined the beauty of the nature. Another complaint is that direction boards are wrongly written. So all these complaints were made by city people. So I hope this video will be beneficial for you in your exams preparation. Do keep preparing and stay healthy. Okay, goodbye and have a nice day.